Thank you so very much, Chairman Sir, for bestowing me the opportunity to speak on the bill of amending the Constitution, Scheduled Caste Order 1950, to modify the list of scheduled castes in the state of Tamil Nadu. According to which 7 subcastes that are to be encompassed, 7 subcastes such as Pallan, Pannadi, Kudumban, Vadriyar, Kaddayan, Kaladi, and Devendra Kultan. And they are to be now called as a Devendra Kula Vellalar. The Devendra Kula Vellalar are the people who traditionally belong to the agricultural community. These people are part of very ancient agricultural Tamils titled Vellalar. Records also convey that they comprise the powerful cultivator and warrior clan. Literature records the mainstay of the Devendra Kula Vellalar as Yerama Poram. Yerama means plow and Poram means warrior. So, these exemplary set of people created and plowed the Tamil Marudham land, which is one of the Tamil Muvindar kings, Chera, Chola, Pandyan emperors. So, they are referred in the ancient Tamil Sangam literature as Mallars, and in epigraphically and ancient copper plate records as Kudumbar and Devendrar, and socially as Pallan, Pallar currently. Writers and researchers like Deva Ashirvadan, Guru Swami have written about their true links with the legendary Muvindar, the 3 great leaders, with irrefutable proof. There are mentioned in the inscriptions 2000-year-old Kerala Iddakal inscriptions, Sivagangai, Pulakuruchi inscriptions, and also the inscriptions was proudly mentioned by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji while laying the foundation stone of the new Parliament building during December 2020. This Kudumbul title has been continuously inscribed even in the Devendra Kula Vellalar, Tiruchintendrar, Lord Murugan temple, both in the ornaments and in the temple pillars. The Devendra Kula Vellalar have been receiving the Parivattam first respect from the temple priest, which involves tying a turban around the head. Temple car festival respects from ancient times in the most important temples of Tamil Nadu like Madurai Meenakshi temple, Pallani Murugan temple, Kovai Perarar, Pateshwarar temple, and almost 400 other temples in Tamil Nadu. There is a proverb in Tamil that Devendra Kulatan Vadam Pidital Ter Odum, which means only by the touch of the Devendra can all the temple's cars move. And true to that, the Devendra Kula Vellalar still initiate all temple car pulling events till date. चेयरमैन सर, एक और मैं बात कहना चाहती हूँ कि आदर और मान सम्मान जो है वो नॉलेज का और स्किल का होना चाहिए, और इसमें कहीं भी जाति विशेष जो है वो कोई मायने नहीं रखती। और इसीलिए किसी समय में ये कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो ऐसे उसमें जब ये हमारे साथ के साथ अगर ये चाहते हैं कि इनको, इन सभी सब कास्ट को देवेंद्र कुला वेलालार कहा जाए, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं किसी भी हमारे सदस्य को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए और हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सा ऐसा रिकॉर्ड इन्होंने पेश किया है। अगर हम देखें, रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द लॉ डिपार्टमेंट इन द ईयर 12th January 1924 to the effect of nominating Thiru PM Kandasamy Moopanar to the Madras Legislative Council as representing the backward community of Devendra Kula Pallars, which proves that they were in the part of the backward class in 1924 AD. With such rich history, culture and lineage, it was a mistake of monumental proportions on the part of the Dadan rulers in the year 1927 to have mistakenly recommended to the British Council to include the Devendra Kula Vellalar in the list of scheduled caste. And you know, Government of India Act 1919, at that time only taxpayers, landowners and educated people were allowed to vote. Government of India Act 1935, only 10% population of India were given voting rights.
This community owned lands and even voted during the British Raj. Now we should have never been included into SC category, said M. Thangaraja, the president of Devendra Charitable Trust. I think ब्रिटिश राज में चेयरमैन सर जो डिवाइड एंड रूल का कानून चला कि आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 10% जो है पॉपुलेशन को वोटिंग राइट था, उसी की बदौलत जो है जाति प्रथा धीरे धीरे मुझे लगता है कि बढ़ती चली गई कि सिर्फ कुछ लोगों को ही ये अख्तियार था कि वो वोट कर सकें। हालांकि ये सब कास्ट ये कहती हैं कि उस समय में भी इनको वोटिंग राइट का अख्तियार था और इसी वजह से ये चाहते हैं कि इनको जो है इन 7 सब कास्ट की बजाय देवेंद्र कुल्ला वेलेलार में एक अलग जो है टाइटल दिया जाए। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूं चेयरमैन सर कि तब से जब इनको डिस्पाइट दिस द ब्रिटिश काउंसिल हावर पास द एससी बिल एंड इंक्लूडेड देम इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन द ईयर 1936, since this act the Devendra Kulla Vellalar have been the subject of humiliation and degradation by all the means in the social, economic and political spheres of life, which is injustice in every sense of word. The impressively rich culture and heritage of Devendra Kulla Vellalar, even the kids have been not spared by humiliating and have been bullied by other students and teachers alike. 1893 में अगर हम याद करें तो उस समय में जो फर्स्ट टाइम में महात्मा गांधी जी को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया गया था, उस समय पहली बार उन्होंने इस दर्द को महसूस किया। और मुझे लगता है कि उसके बाद जब वो वापस भारत में आए तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम जो है वो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किया। और इसी तरह से ही आके उन्होंने तब ये बात कही थी कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने ना। और जो ये दर्द को महसूस करते हैं चेयरमैन सर, जो बच्चे छोटे बच्चे इस दर्द को महसूस करते हैं कि सिर्फ इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए क्योंकि वो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि उनके कोमल मन पर क्या बीतती है उस समय में। और ये सब को हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने बहुत नजदीक से महसूस किया। और ये महसूस करते हुए उन्होंने जिस तरह से फिर काम किया, और इसी का ये नतीजा है कि आज यहाँ पर बहुत सी संख्या में अनुसूचित जाति के जो हमारे सांसद हैं या के विधायक हैं या राज्यसभा में हैं, वो सब चुनकर आते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपको इसमें चेयरमैन सर कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसके बारे में 2015 में वो पूरा डेलीगेशन इनसे मिला और उन्होंने इनकी बातों को सुना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप इन 7 सब कास्ट को जो है हम लोग एक देवेंद्र कुल्ला वेलेलार में जो है उसमें रखेंगे। और इसलिए उन्होंने इन द लाइट ऑफ ऑल दिस एविडेंस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह जी इन 2015 एंड देन इन मदुराई इन 2019 they promised them, and according to the government of Tamil Nadu constituted a special group of study and report on the above issue. The final anthropological report that was submitted conclusively said that this study validated the facts through historical, archaeological, literary and empirical evidences. The ethnographic documentation of the 7 sub-communities has followed a scientific approach. और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट बहुत अच्छा इसमें काम कर रही है। और अभी कल भी मुझे लग रहा है कि हमारे आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया था कि किस तरह से 52% जो है वहां पर एक्सीडेंट रेट जो है वो रुके हैं। और उन्होंने भी जब अपना स्टडी दिया, अपना रिपोर्ट दिया, तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इन 7 सब कास्ट को इसमें इंक्लूड किया जाए और इसको ये नाम दिया जाए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब उस मीटिंग को रिकॉल किया 2015 को, एट दैट टाइम उन्होंने ये कहा था कि देयर सैडनेस कुड बी सीन, colonial rulers took away their pride and dignity. For decades, nothing happened. They told me that they had pleaded with governments, but nothing changed. I told them one thing. I said, उन्होंने लाइटर वेन में कहा था कि your name देवेंद्र rhymes with my name नरेंद्र। तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि आपको देवेंद्र कुल्ला वेलेलार में इंक्लूड किया जाएगा और इन 7 की 7 सब कास्ट को आगे से देवेंद्र कुल्ला वेलेलार कहा जाएगा। एक सेकंड के लिए। सो विद दीज वर्ड्स मैं ये कहना चाहूंगी कि 1964 में
दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक विचार दिया था एक आत्म मानववाद का, 1965 में उसको स्वीकार किया गया और उसी साल अप्रैल में उन्होंने विस्तार से एक आत्म मानववाद के बारे में बताया। और तब उन्होंने ये कहा था कि हमें संघर्ष नहीं, आपस में सहयोग की जरूरत है। मैं ये कहना चाहती हूँ चेयरमैन साहब कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि क्या किसी को सिर्फ इसीलिए टॉर्चर किया जाए कि वो शेड्यूल्ड कास्ट जो है कम्युनिटी से है, क्या किसी बच्चे को सिर्फ इसीलिए जो है वो पानी ना पीने दिया जाए, ये मुझे लगता है कि अब अगर इस तरह की कहीं पर भी कोई घटना या दुर्घटना हमारी नजर में आती है तो सरकार उस पर कड़े से कड़े संज्ञान ले और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि समाप्त कीजिए। जी 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 बिल्कुल जी, लास्ट सेंटेंस। हाँ जी जी, हाँ बस सिर्फ 5 मिनट में कि 5 मिनट नहीं, आखिरी वाक्य बोलिए। जी जी, मैं बस आप अंत में जो है सिर्फ जी 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 बिल है साहब, बिल पे महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं जी, ऐसा लग रहा कोई तमिल की सदस्य कह रहे हैं। तो मैं देखिए सिर्फ 2 ही बातें कहकर अपनी बात को जो है विराम दूंगी जी कि अभी आपके पक्ष में काफी अपील की जा रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बिल्कुल, तो देखिए कि हम ये नोटिस करते हैं कि ये वो सदन है कि जहां पर हमने बहुत बड़े बड़े नेताओं को यहां पर देखा। आदरणीय सुषमा स्वराज जी यहाँ थी, अरुण जेटली जी थी यहाँ पर थे, इंदिरा गांधी जी थी, नेहरू जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जी, लेकिन सदन में ये पूरा जो ये जो हमारा जो ये पता है जी जी जी, मंत्री के रूप में तो आए होंगे यहाँ पर बजट पेश करने इस सदन में। चलिए बोलिए जी, तो मैं कीजिए प्लीज। जी जी जी, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदमी जो है यहाँ पर सिर्फ एक आदमी जो है एक आदम जात है, इसके सिवा और कोई जात नहीं है। क्योंकि अभी परसों के दिन ही यहाँ पर रामस्वरूप शर्मा जी हम सब लोगों के बीच में बैठे थे, आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। तो इसलिए ये जाति भेद हर हालत में किसी भी तरह से अगर हम खत्म कर सके, मुझे लगता है कि तो ये हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात। और उसी तरह से ही कबीर साहब ने भी ये बात कही है कि कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर श्रीमती जो दीनदयाल उपाध्याय जी का एक आत्म मानववाद का जो संदेश था उसको पूरा करते हुए हमें जाति प्रथा को धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। और इसीलिए जो है ये सरकार हमारी लगी हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मंत्री जी को कि वो ये बिल लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ஐராவதம் மீடியாவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும், மேலும் பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐகானை அழுத்தி ஆல் கிளிக் செய்யவும். அப்போது தான் நாம் ஐராவதம் மீடியாவில் போடும் அனைத்து பதிவுகளும் உடனே வந்து சேரும்.